just woke up and this striked me. I don't know why, but I haven't done a reading update in a while. And no surprise because there is nothing to update because I haven't been reading a lot. Last time you saw me reading this book, The City and Its Uncertain World. Let me tell you, I started this in the June beginning. Today is June I think 27th, and I am just halfway through. Just halfway through. Because I went to home for holidays and I was vacationing throughout. I didn't have time to read because I was just going places. So I couldn't read there. Then I came back 2 days later. I had my second semester exam. So I couldn't because I had 1 week full packed. As soon as the exams ended, I didn't have time at all reading this. And I'm so sad because I am 4 to 5 books behind in my reading goal for this year. By now, I should have read at least 20 books, but I haven't. I have read only 16. Next thing is, I'm reading another book I've started. Like, I also read one book on my phone, which is like whenever I'm bored. And I was looking for an adventurous book that I used to read like in when I was like 10 to 12 years old, like Famous Five, the adventure series, like big books by Enid Blyton. So I wanted something like that, and I researched a lot and found something. It was like 500 and something pages long. Swallows and Amazon. So I read some 100 pages, and to be honest, I got bored and I DNF'd it. There were like lots of books that I read, and I then DNF'd, so I couldn't reach anywhere. But now I have started one more book that which is called The Ministry of Time, which has been like really famous on BookTube, I think. Yes. And I hate to give in to BookTube, BookTok, and Bookstagram trends, but I had heard good reviews. I just I didn't buy it. I'm just reading it on my phone, and I read some 20 to 30 pages yesterday, and I must say I'm actually enjoying it. The writing style is something that I really enjoy. So if I would want to introduce that book to you, this is basically about, like, in this book, time travel has already been discovered. Like, they have invented the time travel, and now there's a ministry of time who goes back into time, save those people who they know that they are gonna die, and they have to be saved, one from each timeline. They have like saved seven, and seven but two died, and now there are only five from different timelines, different genders, different backgrounds, and they have saved those people who we know today that will die some way or the other, have been saved and brought into the future so that they can live. And we're experimenting if we can save people by doing this thing, if they can adapt or not. Out of seven, two people have already died because of like gene mutation happening, because they're not like habituated to the environment currently, to the bacterias and the different things that have grown in the future after 200 years. So two people have already died. So this is about this one man that we have brought from past, who is, I think, a member of an expedition, like from navy and all, and he's trying to adapt to now's time. And like, this is so good. He constantly talks about how, like, he constantly taunts everything that's going on in now's world, like electricity and the overpopulation of London. And we have this girl who is the part of the ministry who is helping him out to adjust to the new world. So the storyline is really interesting, and I think I'm also enjoying the writing style. That is really important to me, the writing style. So yeah, that.
एपिसोड वी हैडंट वॉच इट yesterday, बट आज हम साथ में देख रहे हैं. उसको स्पॉइलर मिल गया है बट शी हैज कंटेन्ड हरसेल्फ. हमें नहीं बताया. उर्फी कब भी कि मुझे यहाँ आके पता चला कि ट्रेटर ट्रूटर ढूंढना भाड़ में जाए. देयर आर सम रियल लाइफ ट्रेटरस पीपल. रो दी यार. आई हैव नेवर सीन समवन क्राई मतलब वहाँ पे स्पॉट पे. आई विल नेवर बी अ ट्रेटर. आई एम इनोसेंट. पता ही था उसको. फालतू का क्या नाटक कर रहे हैं. कैसे कर सकता है यार? बहुत हर्ट है वो अपने आप से. It's a ruthless game. रो रही है. शी इज Deciding. Nikita. निकिता प्लीज. निकिता प्लीज डू इट. निकिता कहाँ से आज के यहाँ लिखा होगा आपको? भाई साहब, उसको पूछने पूरी प्लानिंग कर ली थी भाई. वो सब कुछ पता था. वो सोच के बैठी थी कि लास्ट में हम दोनों ही जाएंगे, हम दोनों ही करेंगे. और लिखती, मैं कह रही हूँ ना कि निकिता लिख क्यों नहीं रही है उर्फी, क्योंकि वो उर्फी पे डाउट कर रही थी. Sounds like अच्छा अरे बंद कर प्राची. हिंदी लगा दे. हाँ यार हिंदी लगा दो. अच्छा चूज कर लो किसका मर्डर करना है. क्यों हो गया था? ऐसे ही ढंगा बोला था बहुत. हाँ मेरे को भी. अब हम लोग क्या हो गया? नहीं हम तीनों कर रहे होते हैं. नहीं कुछ नहीं. खोल के दिखा दूँ. गाइस इनको लग रहा है कि हमने चोरी करी है, पर हमने नहीं करी. देखो हम लोग इतने पूरे दिखते हैं क्या? तेल की खरीद के लाए हैं. नहीं आप हम कर रहे हो ना. ठीक है हम लोग याद रखेंगे. आप सब देख रहे हो ना कैमरे में. देखना ऐसा होता है यहाँ पे. हेलो मैम. दीदी बोल दीजिए हम चोर नहीं है. एक बार बोल दीजिए. बोल दीजिए ना. नहीं बोल दीजिए. कह रही तुम हो. शिखा उनकी हेल्प कर रही है. देखिए गाइस आपकी जो ब्लॉगर है ना वो अकेले आइसक्रीम ले रही है. हमको नहीं खिला रही. कह रही तुम गरीब हो खुद ले लेना. ले लो. दिला रही हो? नहीं ले लो. देखो खुद भी गरीब ही है. क्या करे. वो खुद को ही पकड़ ले. काफी है फूड कोर्ट में. देखो यहाँ पे सब कुछ है और मैं आ गई ऊपर. KFC वाओ मोमोज. फिर से KFC. अब हम लोग जा रहे हैं द गार्डन में. आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाओ. मेरा ब्लॉग नहीं है. जिसका ब्लॉग है वो देखे. उसको एडिट करनी है. अब देखो अब मेरे मुंह पे क्या धूप आएगी और मैं क्या सुंदर लगूंगी. कोई धूप नहीं आ रही है. देखो आई ना. मैंने कहा था जब आएगी. यार क्या खाना चाहेंगे आप मानसून दिन में? आइसक्रीम खाएंगे ना. गाइस वी आर बैक. फिर हम वापस उसी आइसक्रीम वाली शॉप पे आ गए हैं जिस पे हम लोग पहले थे, क्योंकि ऊपर हमारा बजट नहीं था इसलिए हम लोग इधर आ गए वापस. मैं आपको दिखाती हूँ. वॉफल कोन या नॉर्मल कोन? 10 रुपीज है तो 50 लगाओ. वो क्या करें हम गरीब है थोड़े से. हाँ तो मैं क्या कह रही थी. मेरे पीछे आपको मार्केट 99 दिख रहा है ना. उसमें 99 का कुछ
एक छोटा सा बैग भी 600 रुपये का था। आप बताना, ये मैंने सरोजनी से लिया है, ये ओनली 300 का है। बताओ, यहाँ पे ठग नहीं रहे आपको? और ये लोग मेरे को आइसक्रीम भी नहीं खिला सकते। देखो अच्छी है। कैसी है मानसून? बहुत अच्छी। रेट करो 10 में से। 9। इनको कितना भी दे दो ये लोग खुश नहीं होते। अच्छी सी अच्छी दे दो फिर भी 10 ही बोला है। मेरी पेमेंट हमारा चाचा करेगा। फोन से ही करूँगी ना फिर मैं। गाइस हम लोग मॉल से वापस शेयरिंग ऑटो में। देखिए कितना बोला ये? कि मैं मैम से बात करूँ। अभी हमें नहीं बताऊंगी आपको वाला। कितना मैं उड़ मेंटल रही पीस तुम हूँ। समझ रहे हो? मैं उड़ रही हूँ हवा में। देखो दो कपल गाइस दिख रहे हैं आपको? गरम सांस ले रही है, इसको बोल रहे हो सांस मत लो। वो सो कह रही कि सांस मत लो। मेडिकल स्टूडेंट गाइस, हम लोग यहाँ नहीं रहते, हम लोग लंदन में रहते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने ऐसा बना रखा है गाँव का, वरना हम लोग यहाँ नहीं पढ़ते हैं। तुम्हारे मुँह पे धूप बहुत अच्छी आ रही है मानसून, तुम्हारी आँखें अच्छी लग रही है। बना दी ना शक्ल, शक्ल खराब हो तो कहीं की भी लाइट अच्छी नहीं लगती। शट अप। मेरे पे देखो, मेरे पे लाइट नहीं आ रही, मेरे को कितनी सुंदर लग रही है। नहीं लग रही है। अब हम लोग निकल चुके हैं मॉल से और हमने बहुत सारी शॉपिंग करी है। हम आपको घर जाके दिखाएंगे, हॉस्टल जाके दिखाएंगे कि हमने क्या क्या किया। थोड़ा शोर है ना इधर। शिट। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं आपको रूम में जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया। काइंडली वेट। ओके बाय। अब हम ट्रांजेक्शन बनाएंगे, ठीक है? मैं ऐसे हाथ रखूँगी, वापस आएगा। ठोक दो भैया। मुझे लग गई। एक और भी मांगना था। तो चली गई। यहाँ बैठी थी एक लड़की। हमारा भी आ गया। नाम क्या? हमारी पानी की बोतल। चलो उतरते गाइस।